So hello everyone. Today we are starting with the topic of quadratic equations of CBSE syllabus in class 10. Previously we had done polynomials in quite a detail and we have learned about what are linear polynomials, what are quadratic polynomials. If you remember, a quadratic polynomial was something like this. अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक पतली सी लाइन का फर्क होता है. इफ यू इक्वेट दिस पॉलिनोमियल टू जीरो और सम अदर नंबर तो यही पॉलिनोमियल इक्वेशन बन गई. यानी पॉलिनोमियल को हम इक्वेट कर दें किसी नंबर को या जीरो को या किसी भी पॉलिनोमियल के साथ इक्वल टू का साइन एसोसिएट हो जाए तो वही पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाता है. नॉट दिस इज द इक्वेशन in front of your eyes and this is a quadratic polynomial. Quadratic क्यों? Because इसकी डिग्री 2 है. फिर भी थोड़ा सा डिटेल में हम करते हैं. Quadratic word has been taken from a Latin word quadratum and quadratum means a square. कोई भी स्क्वायर जिसकी साइड x हो उसका एरिया साइड स्क्वायर फॉर्मूले की वजह से x स्क्वायर बन जाता है. Since the exponent used is 2, that is why the polynomial with degree 2 is known as quadratic polynomial and an equation with degree 2 is known as quadratic equation. Now let us come up with the standard form of the quadratic equation. The standard form of the quadratic equation is a into x square plus bx plus c is equal to 0, where a, b, c belong to category of real numbers and a cannot be 0. Why a cannot be 0? इसके बारे में हम अभी बात करते हैं. If a is 0 तो क्या होगा? We'll have 0 into x square plus bx plus c is equal to 0. यानी we'll have bx plus c is equal to 0 क्योंकि 0 into anything तो 0 हो गया. So अब जो बचा उसकी डिग्री क्या है? That is 1. It is no more a quadratic equation. That is why we say कि a 0 नहीं हो सकता. अगर a 0 नहीं हो सकता तो क्या b और c 0 हो सकते हैं? Let us discuss the cases. So case 1, if b is equal to 0. अगर b 0 है तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे? a into x square plus 0 into x plus c is equal to 0. 0 into anything is 0, so we have a into x square plus c is equal to 0. Up the degree of this equation is 2. That is why it is quadratic in nature. It means अगर b 0 भी हो जाए तो भी जो equation रह जाती है that is quadratic. इसी तरह there is another case. If c is equal to 0 तो क्या होगा? अब इस equation 1 में अगर c 0 हम डाल देते हैं we have a into x square plus bx. c की जगह तो 0 आ गया, so this is equal to 0. अब डिग्री इस इक्वेशन की भी 2 है क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल यूज्ड इज स्टिल 2. It's still quadratic. It means the only condition that we require over here is that a should not be equal to 0 and a, b, c can be any real numbers. अब इनका एक एक एग्जाम्पल लिया जाए. In this case we can take up an example of 2 into x square minus x plus 1 is equal to 0. ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल है. इसमें कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 2. इट मींस a is 2. कोफिशिएंट ऑफ x is -1. It means b is -1 and the constant is 1. So it means c is 1. So this is how we'll correlate the coefficients of a given quadratic equation to the standard one and find out the value of a, b and c. Now in this case if we want to go for an example, अगर a 0 हो गया इसमें तो what are we left with? -x plus 1 is equal to 0. ये तो हमने पहले ही बात कर ली कि this is not a quadratic equation क्योंकि x की सबसे बड़ी पावर यूज जो हो रही है वो 1 है. So it is a linear equation not a quadratic one. Moving on to the case when b is equal to 0. इस केस में अगर कोई एग्जाम्पल हम ले सकते हैं तो इट कैन बी समथिंग लाइक 2x square plus 1 is equal to 0.
तो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इसमें भी वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर जो यूज हो रही है दैट इज 2, सो दिस इज क्वाड्रेटिक. In this case, when c is equal to 0, we can take up an example like 2x square minus x is equal to 0. 2 into x square minus x is equal to 0. Now the degree of this quadratic equation is 2, so this is a quadratic equation. Right now, we have done what is a quadratic equation. I hope you have understood. We'll move to question number 1 of the first exercise, that is exercise 4.1 of quadratic equations. In the first question, they have given us a number of equations in disguised form. सीधे नहीं दी हुई, disguised form में दी हुई है, छुपी हुई form में दी हुई है, और हमें कहा गया है कि identify whether they are quadratic equations or not. Verify whether they are quadratic equations or not. I'll take up one or two parts of this question and let you know how the steps have to be handled. So, the first question, first part of this exercise has given us an equation x plus 1 whole square is equal to 2 into x minus 3. And we have to verify whether this is a quadratic equation or not. So, quadratic equation की जो standard form है उसमें right hand side में 0 होता है. So, मतलब ये हुआ कि हमें ये सारा कुछ sort out करके left hand side में लेकर आना है. राइट हैंड साइड पे 0 रह जाना चाहिए. फिर लेफ्ट हैंड साइड की हम डिग्री डायग्नोज करेंगे. अगर डिग्री 2 है तो विल से इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अदरवाइज इट इज नॉट. लेट्स प्रोसीड. नाउ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड व्हाट कैन यू सी? इट इज x plus 1 होल स्क्वायर. ये हमें किस आइडेंटिटी की याद दिलाते हैं? यस, दिस इज a plus b होल स्क्वायर. a plus b होल स्क्वायर इज ओपन विद a स्क्वायर plus 2ab plus b स्क्वायर. अब इसमें a की जगह x ले रहा है, b की जगह 1 ले रहा है. मैं इसे a प्लस बी होल स्क्वायर की तरह ही खोलूंगी. पहली टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू द फर्स्ट टर्म इंटू द सेकेंड टर्म. डॉट सिग्निफाइज इंटू मीन्स मल्टीप्लाई. प्लस 1 का स्क्वायर यानी सेकेंड टर्म का स्क्वायर. On the right hand side, I am opening up the bracket. 2 is going to multiply with each term of the bracket. जब भी हम दो numbers multiply करेंगे, पहले हम उनके signs को multiply करेंगे, फिर उनके numerics को, और last of all उनके literal numbers को. So plus into minus is plus into plus is plus. X का coefficient 1 है, so 2 into 1 is 2, and x will associate it. There is no need to pen down the plus sign if it is coming with a leading one. So plus into minus is minus. 2 into 3 is 6. Let's open up x square plus 2x plus 1. जैसा हमने पहले बात की थी, राइट हैंड साइड को हम इस साइड ले आते हैं. Now right hand side has become 0. We'll sort it out by solving the like terms. What do we get? X square plus 2x and minus 2x are cancelled with one another. So 1 plus 6 is 7. We are left with the equation x square plus 7 is equal to 0. अगर आप इसे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि b इधर 0 है. So this is a quadratic equation since the degree is 2. So this is a quadratic equation since degree is 2. Now let's move on to one more part of this one. I'm picking up the third part most probably. This is x minus 2 into x minus 1, or rather x plus 1 is equal to x minus 1 into x plus 3. So first of all, we have sorted out. If you look at both the sides, they are reminding us of the identity x plus a into x plus b. Now x plus a into x plus b can be sorted out like x square plus a plus b into x plus a. Fine.
ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। पर अगर आपको ये आइडेंटिटी याद नहीं है तो आप इसे कैसे खोल सकते हैं? आई एम मूविंग विद दैट प्रोसेस। इफ यू रिमेंबर द आइडेंटिटी, ये डेफिनेटली आपका टाइम सेव करती है। बट इफ यू डू नॉट रिमेंबर द आइडेंटिटी, यू कैन मूव एज आई एम डूइंग। पहले ये x पूरी की पूरी सेकेंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, फिर -2 पूरी की पूरी सेकेंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। Likewise, on the right hand side, x is going to multiply with the second bracket, and then -1 will multiply with the second bracket. Let's open up. We get x here plus x minus 2x. Now minus into plus is minus, so 2 into 1 is 2. This is x here plus 3x. Minus into plus is minus 6. Minus into plus is minus 3. So let's first simplify it, and then we'll bring everything on the left hand side. ये दोनों लाइक टर्म्स है। सो -2x प्लस 1x, एक साइन प्लस का हो एक माइनस का हो तो सब्ट्रैक्शन होती है, साइन बड़े वाले का लगता है। सो दिस इज -x -2 दिस साइड, और इधर हमारे पास बचा x क्यूब प्लस 2x -3. नाउ ब्रिंग एवरीथिंग टू दिस साइड. व्हाट डू वी गेट? वी हैव x क्यूब -x -2. आई एम गेटिंग एवरीथिंग टू दिस साइड, तो साइन चेंज हो जाएंगे बिकॉज जो चीज वहां ऐड हो रही है वो इधर आके सब्ट्रैक्ट होंगी. सो वी हैव -x here -2x plus 3 is equal to 0. Let's see out. Look at the like terms. Plus x here goes with -x here, right? Now what are we left with? -x -2x. This is -3x. Next we have -2 plus 3. Plus 3 -2 यानी सब्ट्रैक्शन हो रही है 3 और 2 की, that is 1. और साइन किसका लगेगा? 3 का, क्योंकि 3 बड़ा है 2 से. सो -3x plus 1 is equal to 0. अब ये इक्वेशन जो हमारे पास एंड प्रोडक्ट की तरह है, इसकी डिग्री 1 है, डिग्री इज नॉट 2. सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. सिंस डिग्री इज नॉट 2, therefore above equation is not quadratic. I hope you have got this part. Now I am moving on to another part of this exercise and picking up part 8 of question number 1. Now part 8 states, they have given us the equation something like this. X cube minus 4 into x cube plus -x plus 1 is equal to x minus 2 whole cube. इस इक्वेशन को देखते ही आपको पता तो चल गया होगा कि वी हैव टू गेट एवरीथिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. उसके लिए वी हैव टू सॉर्ट द राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड रिमाइंड्स अस ऑफ द आइडेंटिटी a minus b whole cube. Just to recall, a minus b whole cube is opened as a cube minus 3 into a square b plus 3 into a into b square minus b cube. Fine? जहाँ a is acting as the first term and b is acting as the second term. This is left hand side is already in the sorted form, so it will remain as it is. Right hand side को हम a minus b whole cube से open करने लगे. a की जगह x आ जाएगा और b की जगह 2 आ जाएगा on the right hand side. So we have x power 3 minus 3 into x power 2 into 2 plus 3 into x into 2 square minus b cube यानी 2 cube. So what are we left with? X cube minus 3 2s are 6 x cube. 2 2s are 4 into 3, 12x minus 8. What do we have on the left hand side? So no more simplification is required. If you wish, you can cancel x cube and x cube on both the sides because both of them are with the same sign. When we'll bring it to this side, it will become minus x cube and it will cancel. Now let's put it down. This is x cube
माइनस 4 इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1। अब हम राइट हैंड साइड को इस साइड लेकर आ रहे हैं, दिस बिकम्स माइनस एक्स क्यूब प्लस 6 इंटू एक्स क्यूब माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 8। सब कुछ इधर आ गया तो उधर कौन बचा? 0। सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? लेट्स गो फॉर द लाइक टर्म्स, इफ वी कैन सॉर्ट देम आउट। एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कौन? लेट्स लुक एट द स्क्वायर टर्म्स। दिस इज प्लस 6 इंटू एक्स क्यूब माइनस 4 इंटू एक्स क्यूब, एक प्लस एक माइनस है तो सब्ट्रैक्शन होगी साइन बड़े वाले का, वी गेट 2 इंटू एक्स क्यूब। देन वी हैव माइनस एक्स माइनस 12x, सेम साइन है, एडिशन होगी, साइन दोनों का लगेगा। सो माइनस 1 माइनस 12 इज माइनस 13 इंटू एक्स, and now it's the turn of the constants, plus 1 plus 8 is plus 9. So this is in the standard form. The degree of this equation is 2. This is again a quadratic polynomial. So we'll write down, since degree is 2, therefore above equation is a quadratic equation. So by now you might have come to know कि जब हमें कोई डिस्गाइज्ड इक्वेशंस दे दी जाए और हमें वेरीफाई करना हो आर दे क्वाड्रेटिक और दे नॉट, विल सॉर्ट देम आउट। और राइट हैंड साइड पे हमने सिर्फ 0 रखना है, बिकॉज दैट इज व्हाट इज देयर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज a इंटू एक्स प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो राइट हैंड साइड पे 0 आ गया, सो दिस इज अ सिंप्लीफाइड वर्जन, डिग्री 2 थी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। Question number 2 of the first exercise consists of approximately, yes, it consists of 4 parts और इन 4 parts में word problems हैं, यानी statement questions हैं। इन statement questions को कैसे डील करना है, इन word problems को कैसे डील करना है, इसको हमने बहुत डिटेल में linear equations के चैप्टर में किया था। As I said in that chapter, हमें भाषा का ज्ञान होना चाहिए। भाषा सिर्फ हिंदी या इंग्लिश नहीं होती, मैथ्स की भी भाषा होती है। हर स्टेटमेंट को रीड करने के लिए कौन सा सिंबल कब आएगा उसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए। जो चीज़ें तब मैंने कही थी वही मैं दोबारा से रिकलेक्ट करूँगी एज आई सॉर्ट देम आउट। I'll just erase this and discuss with you what all is required to read a statement question. जब भी आप कोई स्टेटमेंट क्वेश्चन रीड करते हैं, अगर सेंटेंस बहुत लंबा है तो उसके 2 छोटे छोटे या 3 छोटे छोटे टुकड़े कर दें। इसके अलावा टुकड़े करने के बाद भी ऑलरेडी अगर कोई सेंटेंस छोटा है तो उनको कैसे डील करते हैं। किसी भी सेंटेंस में वर्ब का इस्तेमाल जरूर होता है, यानी इज, वॉज, हैव, हैड, बिकम, ग्रो, इस टाइप का कोई भी वर्ब देखते हैं या इसके टाइप का कोई और भी वर्ब हो, चाहे विच हैव नॉट इंक्लूडेड ओवर हियर, उसकी जगह इक्वल टू का साइन आपने डाल देना है, राइट। वंस यू डायग्नोज दिस वर्ब तो वो उस वर्ब की जगह इक्वल टू का साइन डाल दें। फिर सेंटेंस में देखें कि इस वर्ब के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा है और इस वर्ब के राइट हैंड साइड पे क्या लिखा है। छोटी छोटी भाषा, जैसे ट्वाइस का मतलब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय, ये आपको पता होना चाहिए। थ्राइस का मतलब क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय, ये पता होना चाहिए। अगर ऐड, टुगेदर जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल हो रहा है तो इट मीन्स यहाँ पर प्लस साइन आएगा। अगर कहीं पे डिफरेंस की बात हो रही है, सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है, माइनस की बात हो रही है, चीज कम होने की बात हो रही है, तो we'll put down the symbol of minus। ऑफ की बात हो रही है, टाइम्स की बात हो रही है, इनटू की बात हो रही है, प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो हम सिंबल डालते हैं मल्टीप्लाई का। डिवाइडेड बाय, ओवर, इस टाइप के वर्ड्स का इस्तेमाल होता है तो we'll put down डिवाइड सिंबल। इन मैथमेटिक्स हमारे पास पूरी दुनिया में 4 ही सिंबल्स और 4 ही ऑपरेशंस है। तो 4 सिंबल्स आर प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, and the operations are addition, subtraction, multiplication and division. Of course there are other symbols if we go deeply into BODMAS, but presently we are looking into the standard structure of mathematics जिसमें हम आम क्वेश्चन पे इनका
प्रयोग करते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन, इट स्टेट्स दैट the area of the rectangle is 528 square meter. The area of the rectangle is 528 square meter. The length of the plot in meters is 1 more than twice the breadth. And we need to find the length and the breadth of the rectangle. हमें find करने को नहीं कहा गया, हमें कहा गया कि represent करो in the form of quadratic equations. पहला स्टेप क्वेश्चन का होता है कि पूरे क्वेश्चन को, पूरे वर्ड प्रॉब्लम को पूरा का पूरा रीड करो, टुकड़े उसके नेक्स्ट स्टेप में करने हैं. तो अब मैं पहले टुकड़े पे आ रही हूँ. पहला टुकड़ा कह रहा है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 528 स्क्वायर मीटर्स. सो लेट अस सपोज इन अ रेक्टेंगल, अगर आप किसी फिगर का इस्तेमाल कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम पे तो उसका नाम टॉप पे लिखा जा सकता है, इससे आपका टाइम सेव होगा. इन अ रेक्टेंगल एरिया इज गिवन टू बी 528 स्क्वायर मीटर. ये आपको परसेंटेज में दिया गया है. इस वर्ड का इस्तेमाल हुआ था, इसकी जगह इक्वल टू आ गया. इससे पहले बात कर रहे थे एरिया ऑफ रेक्टेंगल की, और उसकी जो वैल्यू है दैट इज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द वर्ड. सेकेंड सेंटेंस कह रहा है द लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 1 more than twice the breadth. इसका इस्तेमाल करें, इसकी जगह हमने इक्वल टू डाल दिया. इसके लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट, यानी L of the plot. I am using L for length. Length of the plot is. अब इसके बाद क्या लिखा है वो सारा राइट हैंड साइड पे आएगा. 1 more than twice its breadth. 1 more than यानी 1 added to what? Twice the breadth. Twice means 2 multiply by. 2 multiply by what? Twice the breadth लिखा था, so 2 multiply by the breadth. तो ये हमारा जो गिवन था उसे हमने लिख लिया. अब हम सपोजिशन करेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे. सपोजिशन आई टेक अप फ्रॉम द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. लेट ब्रेथ इज इक्वल टू x मीटर्स एंड देयरफॉर लेंथ कितनी बन गई इस गिवन डाटा के हिसाब से? लेंथ इज 2x + 1. सिंस बायनोमियल है इसे ब्रैकेट में डाल सकते हैं आप, मोनो को भी डाल दें ताकि वो यूनिट्स उससे डिफरेंशिएट हो सके. सो दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द ब्रेथ विद अस. अब इसके अलावा हमें क्या दिया गया था? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. वी नो दैट एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज गिवन बाय द फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ. सिंस एरिया इज 528, सो इट मींस लेंथ इनटू ब्रेथ इज 528. लेंथ की जगह विल यूज दिस वैल्यू 2x + 1. बाइनोमियल है तो बिना ब्रैकेट के बिल्कुल भी काम नहीं करेगी, अदरवाइज गलत हो जाएगा. b की जगह पर x आ गया. सो लेट्स ओपन अप द ब्रैकेट. x is going to multiply with each term of the bracket, so we have 2x into x is 2 into x square plus 1 into x is 1x. हम खाली x डाल देंगे. 528 को इधर ले आते हैं. Is that fine? Now this is quadratic in nature. This is what we were required to do. We were asked to represent the given information in the form of quadratic equation. So this is done. If we want to find out the value of length and breadth, definitely you must be remembering. We can go for splitting of middle term. इसे हम डिटेल में सेकेंड एक्सरसाइज में फिर से डिस्कस करेंगे. So this is what was required. I hope you have got it. Now let's move to the second question. It's again a statement question. अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेट्स सी दैट. The question is saying the product of two consecutive positive integers is 306, 306. We need to find the integers. एक ही सेंटेंस में बहुत सारी चीजें डाल दी है. पहला वर्ड प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स. अब कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स उन्होंने सपोज करने को बोला है. कंसेक्यूटिव इंटीजर्स वो होते हैं जिनमें 1 का डिफरेंस हो. हम बात करें नेचुरल नंबर्स की तो 1 2 3 4 ऐसे लिखा जाता है. 1 और 2 कंसेक्यूटिव हो गए, 2 और 3 कंसेक्यूटिव हो गए, 3 और 4 कंसेक्यूटिव हो गए, 5 और 6 कंसेक्यूटिव हो गए. सो कंसेक्यूटिव नंबर्स मीन्स जब जो एक सबट्रैक्ट करके या जो एक ऐड करके आता है. द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स इज गिवन टू बी 306. So let's see what can we do. Let us suppose
let first positive integer is equal to x. अब दूसरा पॉजिटिव इंटीजर सपोज करना है, बात उन्होंने की है कंसेक्टिव, ये कंसेक्टिव वर्ड से हम सपोजिशन कर रहे हैं, इस एक कंसेक्टिव वर्ड के मीनिंग कितना ज्यादा है, तो सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर क्या हुआ, वो इसी में ऐड या सबट्रैक्ट, वंस ऐड या वन सबट्रैक्ट करके आएगा, आई एम एडिंग वन, सो x plus 1 is this will give me the second positive integer which is consecutive to x1. अब फिर से भाषा पे आ जाए, उन्होंने कहा था the product of these two consecutive integers is 306. So according to the statement, इसको मैंने पकड़ा, इसकी जगह इक्वल टू डाल दी, इसके राइट हैंड साइड पे लिखा है 306. डन. अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, तो प्रोडक्ट ऑफ दीज टू कंसेक्टिव इंटीजर्स यानी x into x plus 1. So let's sort it out. This is x into x, x cube plus x minus 306 is equal to 0. So this is the required quadratic equation जो हमसे मांगी गई थी. अगर हम इसमें वैल्यूज ढूंढना चाहें तो डेफिनेटली वी कैन गो फॉर स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म. इनफैक्ट इस चैप्टर में हम और भी बहुत सारे ढंग स्टडी करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए. पर राइट नाउ विल till we are take up the other techniques, we'll talk of only splitting of middle term or other methods like taking of common. Now moving on to the third part. I'm erasing the first one now. Third question says Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages in years 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. दो लोगों की उम्र की बात हो रही है और दो टाइमिंग्स की बात हो रही है, प्रेजेंट एज और एक 3 साल बाद. हमें एंड में सब फाइंड करनी है रोहन की एज. अकॉर्डिंगली वी हैव टू डू द सपोजिशंस. हम अपनी वर्ब्स की नॉलेज का इस्तेमाल कॉन्टिन्यूसली रखेंगे. पहले टाइम एरा को डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में. प्रेजेंट एजेस, थ्री इयर्स लेटर. दो लोगों की उम्र की बात हो रही है, रोहन एंड रोहन्स मदर. सो लेट रोहन्स एज बी प्रेजेंट एज बी x years. और फर्स्ट सेंटेंस में क्या कहा गया है, रोहन्स मदर इज 26 years ओल्डर देन हिम. ओल्डर देन हिम मीन्स वो उससे 26 साल बड़ी है. एक चीज का हमेशा बच्चे ख्याल रखें कि ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ये हमारी बोलचाल की भाषा में अगर हम इन्हें कन्वर्ट कर देते हैं तो इनका मीनिंग हमारे और भी करीब आ जाता है. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस लाइन मदर्स एज कितनी हो गई, मदर्स एज इज, इसकी जगह इक्वल टू वो रोहन से 26 साल बड़ी है. इट मीन्स रोहन की उम्र में 26 ऐड कर देंगे तो मामा की उम्र आ जाएगी. सो इट इज x plus 26. इट्स अ बाइनोमियल, पुट इट डाउन इन द ब्रैकेट. अब 3 साल बाद की बात करते हैं. अगर आज रोहन की उम्र x years है तो 3 साल बाद रोहन की उम्र कितनी होगी, 3 ऐड कर देंगे, x plus 3 years. मदर्स एज कितनी हो जाएगी 3 साल बाद. अगर आज x plus 26 है तो इसमें 3 और ऐड कर देंगे तो 3 साल बाद की उम्र आ जाएगी. सो इट इज x plus 26 plus 3 यानी दिस इज x plus 29 years. ये हमारा सपोजिशन वाला लेवल हो गया. अब लेट्स रीड द सेकेंड क्वेश्चन. दे से आफ्टर 3 years the product of their ages will be 360. So what is according to the statement? According to the statement, after 3 years, अगर after 3 years की बात हो रही है तो हम ये डाटा यूज करेंगे. और कैसे यूज करने को कहा है उन्होंने कहा प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 360. So according to the statement, after 3 years, Rohan's age into mother's age is 360. After that we are going to solve this down.
So what do we get? X clear. We can solve it by x plus a into x plus b as well, and we can just multiply x with the second bracket and then plus 3 with the second bracket and then sort it out. I'm making use of x plus a into x plus b presently. So this turns out to be x clear plus 29 plus 3 is 32x plus 3 into 29 will give us 87. हमें इस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देनी है, तो we'll bring everything to the left hand side. So एक प्लस एक माइनस तो सब्ट्रैक्शन में कि साइन बड़े वाले का लगेगा. So we have x here plus 32x minus 273 is equal to 0. So this is the quadratic representation of the word problem that was given to us in part 3 of this exercise, and now we'll move to part 4. But there are very many ways of doing any one question. Now part 4 can be done in many ways. I'm taking the way in which I feel my children will be comfortable, but if you encounter any other way and you feel that one is easier, so sure you can go by that. So let's move. What does the problem says? The problem says a man travels a distance of 480 kilometers at a uniform speed. If the speed had been 8 kilometers per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same journey, the same distance, and we are asked to find the speed of the train. Rather, we have to just give the presentation of it, right? So moving on, let's टेक अप द टू केसेस. एक वो केस जिसमें स्पीड यूनिफॉर्म रहती है और एक दूसरा केस जिसमें स्पीड कम हो जाती है 8 किलोमीटर पर आवर से. सो केस 1, केस 2. लेट स्पीड. ज़्यादातर इन 90% ऑफ क्वेश्चंस जो हमें फाइंड करना होता है वही हमें सपोज करना होता है. लेट स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर्स पर आवर. डिस्टेंस कितना दिया गया है? दैट इज 480 किलोमीटर्स. इन्हें हम थोड़ी सी नोटेशन से दें. स्पीड की जगह हम एस का इस्तेमाल करेंगे, डिस्टेंस की जगह डी का. दिस इज 480 किलोमीटर्स. केस 2 में उन्होंने कहा है कि स्पीड कम हो जाती है. सो स्पीड इज x माइनस 8 किलोमीटर्स पर आवर. डिस्टेंस तो वही रहता है बिकॉज सेम जर्नी थी 480 किलोमीटर्स. दिस इज एस फॉर स्पीड, टी फॉर डिस्टेंस. अब बात करते हैं टाइम की. वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो टाइम क्या हुआ? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो व्हाट इज द टाइम इन दिस केस? टाइम इन केस 1 में इसे t1 नाम दे देती हूँ. This is distance upon speed by this formula. This is 480 upon x. दूसरे केस में, सेकेंड केस में टाइम को हम t2 मान लेते हैं. Again by using the formula, time is equal to distance upon speed. We have 480 upon x minus 8. अब आइए वापस क्वेश्चन के. Last line of this question is, if the speed had been 8 kilometers per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. Speed कम हो जाएगी तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा ना. This is but natural. मैंने पहले कहा था कि word problems are usually when converted to our spoken language, अपनी बोलचाल की भाषा में convert कर ले तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आते हैं. Now this is the case when the speed train was slow. This is the case when the train was fast. तो जब ट्रेन स्लो होती है तो टाइम ज़्यादा लगता है. सो इट मीन्स दिस इज बिगर एंड दिस इज स्मॉलर. एक और ढंग होता है फ्रैक्शंस को जज करने का कि वो बड़ी और छोटी कैसी हैं. अगर न्यूमरेटर सेम है, मान लीजिए आई हैव 8/2 एंड 8/4. न्यूमरेटर्स अगर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो वैल्यू बड़ी होगी बिकॉज 8/2 इज 4 and 8/4 is 2.
एंड डेफिनेटली 4 इज ग्रेटर देन 2। इन दोनों में से कोई भी स्कूल ऑफ थॉट, कोई भी सोच आप इस्तेमाल कर लीजिए, फास्ट लो की रख लीजिए या ये फ्रैक्शन वाली सोच अपने दिमाग में रख ले। हमें कहा गया है कि जब स्पीड स्लो हो जाती है तो जो टाइम का फर्क है वो 3 घंटे का हो जाता है। इस बात को लिखने का 2 ढंग होते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 3। आप इसी बात को इस ढंग से भी ले सकते थे, T2 इज T1 प्लस 3। आपको जो भी कंफर्टेबल लगता है आप उस ढंग से कीजिए। सो व्हाट डू वी हैव, 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। 480 कॉमन आ सकता है, वी हैव 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3। एलसीएम ले लें तो ये बना x इंटू एक्स माइनस 8, दिस इज 3 अपॉन 480। सो दिस इज x इंटू एक्स माइनस 8 को x माइनस 8 से डिवाइड किया तो x आ गया, माइनस आना बीच में, सो डोंट फॉरगेट टू पुट द ब्रैकेट इन द नेक्स्ट केस, दिस इज x माइनस 8। ब्रैकेट खोलेंगे तो व्हाट डू वी गेट, x माइनस 6 प्लस 8 x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1 अपॉन 160। सो व्हाट डू वी गेट नाउ, ये दोनों कैंसिल हो गए, वी हैव 8 अपॉन x square minus 8x is equal to 160. Cross multiply, we get x square minus 8x is equal to 1280. स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करें तो ये बता x square minus 8x minus 1280 is equal to 0. So this is the required quadratic polynomial to sort out this word problem. I hope you have got it. Do practice them and do the examples preceding the exercise. Thank you.